check answer. Good morning. Okay. So today what we are going to see is that three ratios we will see. First of all, we will see what do you mean by APS. Okay. Next, we will see what do you mean by P to A ratio, and if possible, we will go for CAGR. Okay. So we will see only three ratios, not more than that. Okay. And according to this, we will try to analyze the share. Getting it? So today's aim is just to first of all see this EPS. EPS means what? Earning per share. Fine. We will just see this particular share ratio. Then P means what? Price to earning ratio. This is a price to earning ratio. And CAGR is just compound annual growth rate. Getting it? This is if I'm not mistaken on that, this is the full form of that CAGR. Fine. So EPS, P, and CAGR. So these are the ratio we will see. Now, first of all, where do we get that? So if I open Money Control ka website, okay, and if I search for any share, Money Control. Come on, get it open. Yeah. Fine. So now if you just see for this particular share, that is the Infosys, one of my favorite in IT sector. So this is a you may say home page for this share. Once you just put that name of the share in Money Control. Yeah, it was scrolling so slow. Just a minute, guys. Yeah, yeah. So here you have to just put that share ka name. Then this particular window will open. This Infosys ka all the what do I say, the history will open. Okay. Then yeah, we will try to study this one. Okay. So this is what today this is up by 0.25%. Is this is a percentage and this is in rupees. Okay, so 4 rupees it is up. Fine. This is a day range. Day range means what? It may now this is what is trading at this particular level. So it may go like 1699 to 1710 means till just now up to the 940. Okay. It has just it is ranging between this one 1699 to the 1710. Fine. This is the 52 week range. 52 week range. I mean, this is for the 52 week low and 52 week high. Means within a 1 year, what was that lowest price for this particular share? So within 1 year, if I just say, so it was like 913. Means somewhere in year, the price was 913, 930. Okay, and now it is selling at 9757. Sorry, 1757. Okay, so you can see मतलब जब that share was at 900 rupees, अगर उस टाइम अगर आपने buy किया होता तो 1 year में आपका डबल हो जाता पैसा, because 900 का just around 1800. So yes, this price is around 1800. Getting it? Okay, so it's a 52 week high, means what is the highest price achieved by the share in this year? Are you getting it? Just in last 52 week. Getting it? So this was the lowest price and this is the highest price. Fine. Now this is something volume, bid, and ask that we will see later on. Okay, but this is the day ka range and this is the 52 week ka range. Okay, so the day ka range means what? Today what was the lowest price achieved and what was the highest price achieved? Okay, and if I say 52 week, this is for the past 1 year. Getting it? Okay, so past 1 year में सबसे lowest price था 913 and the highest price था 1757. Okay, volume and all that we will see later on. Okay, then this is all the part of fundamental analysis. Then here it is a SWOT analysis. It's called the SWOT analysis. SWOT. Okay, this also we will see later on. Okay, SWOT. SWOT means what? The strength, weakness, opportunity, and threats in this particular share. So 11 strengths are there. If you just open this one, then it will just give that, yeah, which are the 11 strengths for the Infosys. Okay, likewise, we may go for the weakness, opportunity, and threat. This we will see later on. Fine. Now, what the ratios which I'm talking about, it comes over here. When you just go to the overview tab, so it will just see, you will see this many, what I can say, that digit, or you will say numbers. Fine. So now this one open, मतलब कितने में आज open हुआ? ठीक है, तो 915 को क्या प्राइस था? सो 1705. ठीक है, प्रीवियस क्लोज तो मतलब लास्ट ट्रेडिंग डेट पे मतलब फ्राइडे पे कितने में बंद हुआ था? सो इट्स 1700. नाउ इट्स नॉट लाइक कि मतलब जिस पे क्लोज हुआ है उसी पे ऊपर होना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, प्रीवियस क्लोज मींस व्हाट वाज द what was the closing price on Friday? तो फ्राइडे को ये पर्टिकुलर इस पे क्लोज हुआ था. ठीक है, सो टुडे इज अ मंडे, सो अभी आज ओपन 1705 पे हुआ. सो इट्स नॉट ऑलवेज कि या जहां पे क्लोज हुआ है वहां पे ओपन होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, वो ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन जो प्री मार्केट अपना सेशन रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है. फाइन. अभी वॉल्यूम मींस व्हाट? कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं.
Are you getting it? कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है? सो 4,95,000 अभी ये बढ़ते ही जाएगा पूरे दिन में, ठीक है? तो 5 लाख शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं फिलहाल तो, गेटिंग इट, ठीक है? अब ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज वगैरह वो बाद में देखेंगे. देन बीटा इफ आई गो देन जस्ट सी दिस बीटा क्या होता है, ठीक है? नाउ दिस इज व्हाट द हाई मींस आज का हाई, आज का लो, and this is what upper you see means what upper circuit limit means today this share can go up to 1870, इसके आगे नहीं जाएगा. पर इसके अगर इसकी मतलब if it touch to this particular level तो उसमें ट्रेडिंग बंद कर देंगे, ठीक है? So for every share will be having some upper circuit and lower circuit. You get it? Upper circuit means what कि बायर बहुत सारे आगे और बेचने वाला कोई नहीं है, तो तब जाके शेयर में अपर सर्किट लगता है. Try to understand. These are the some terms you will listen means whenever you are watching this particular business or this share market channels, then you will see हाँ आज इसको अपर सर्किट लगा, आज इसको लोअर सर्किट लगा, ठीक है? Now upper circuit means what वो शेयर में सिर्फ बायर्स ही है, बेचने वाला कोई नहीं है, ऐसे हो जाए, ठीक है? So that time it goes to the upper circuit, मतलब now today it can go to the 1870, पर इधर तक पहुंच गया प्राइस तो फिर खत्म, उसके आगे ट्रेड नहीं होने देगा, बिकॉज देयर आर सम रूल्स. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, मतलब दिस इज द हाईएस्ट प्राइस फॉर द डे, मतलब इफ इट गोस टू दिस वन तो उसके आगे ट्रेडिंग बंद कर देंगे, ठीक है? एंड लोएस्ट प्राइस आल्सो इज देयर, मतलब कभी भी कौन सा भी शेयर एकदम फटक से बहुत ज्यादा ऊपर का बहुत ज्यादा नीचे का ऐसे नहीं होगा, मतलब ऊपर ज्यादा नाउ दिस एट ट्रेडिंग एट लेट्स सपोज 1705, सो इट विल नॉट गो टू 3000 5000 इन अ डे, ठीक है? एंड इट विल नॉट गो टू जीरो आल्सो इन अ डे. एनीथिंग रॉन्ग? Am I audible, Navis? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So 2 में आया, मेरे को लगा कुछ प्रॉब्लम हो गया. या फाइन. सो अपर सर्किट मींस व्हाट, ये ज्यादा ज्यादा आज इसका प्राइस इतना जा सकता है उसके ऊपर नहीं जाएगा, एंड लोअर सर्किट इससे नीचे नहीं जाने वाला. गेटिंग इट? ठीक है? एंड दिस इज अ 52 वीक हाई एंड लो, दैट इज व्हाट वी हैव सीन ऑन दैट रेंज, तो वो सेम है, ठीक है? अभी व्हाटएवर आई वाज टॉकिंग, यस, okay, I think no doubt, ठीक है? So this is what I'm talking about, that APS, PE and all. So these are the ratio we will see, ठीक है? APS means earning per share, P means PE means is just price to earning ratio, ठीक है? And TTM means what? TTM means what is a trailing 12 months. So this is for the 12 months, मतलब they will take the 12 months का data and उसके हिसाब से they will just get this particular value, ठीक है? TTM is a trailing 12 months. So wherever you see this TTM means a trailing 12 months, ठीक है? And whenever you see that LTP is the latest trading price, getting it? These are some short form which are used, ठीक है? So now today we will talk regarding this one, and depending on this we will try to analyze share कैसा है, अच्छा है कि बुरा है. Fine. So first of all we will see EPS, ठीक है? अभी EPS चीज क्या है? It's just like earning per share, ठीक है? I will just come to this board. Laptop साथ दे यार. Yeah. So EPS means what? Is earning per share. Okay, so as this name says, is earning per share. So how do we calculate? Just simple. It's just like profit of the company. We have to just consider the profit of the company. Okay, divided by number of shares. Fine. So this is the formula for getting that EPS. So how do we calculate EPS? It's just like profit, getting it, divided by the number of shares. Now, how to get that profit? Yes, for that we can just go to that financial statement and we can just check that PAT, means whatever that we have said, that PAT, profit after tax. So that we can just put it over here. Okay. And how to get number of shares? Now, if you have to just calculate this number of shares, the formula goes like this one. Try to understand. I'm just giving you all the formulas. Means how do they calculate this particular EPS and all. Okay. So number of share formula I said it's just like market capital of that particular company divided by current share price. Are you getting it? ठीक है? तो once again for the EPS there is a earning per share. The name is earning per share. मतलब एक शेयर के पीछे मैं कितना कमाऊंगा. That is what the simple meaning. ठीक है? So the formula is what profit. What is the profit that particular company has made? ठीक है? Divided by number of shares. मतलब जितने अभी मार्केट में शेयर्स अवेलेबल है. ठीक है? Divided by number of shares. Then only I will get that एक शेयर के पीछे मैं कितना कमाऊंगा. That is what the earning per share. एक शेयर के पीछे मैं कितना कमाऊंगा. Fine. And how to get the number of shares? Now how to get this profit? That is from the that financial statement that we have seen. वो पैट से निकालेंगे, ठीक है? That is the profit after tax. And this is the number of shares. How do we get? It's just like market capital divided by current shares price. ठीक है? Now current share price that I know now for the Infosys it is going 1705. ठीक है? Then how to get this market capital? Once again you can just come to this particular money control and here you can see market capital. MKDCAP. This is a market capital and this is in crore. ठीक है? So that company का market capital means वो कंपनी का आज के डेट में वैल्यू क्या है? लेकिन अगर वो कंपनी आज मतलब लेट्स सपोज इन्फोसिस बेचने के लिए निकाले तो उसको मतलब कितना रुपीस मिलेगा उसको,
ऐसा, दैट इज मार्केट कैपिटल मींस अभी फिलहाल तो उसका प्राइस क्या है, मतलब वो कंपनी का, ठीक है। सो मार्केट कैपिटल देखो ना, इन्फोसिस का प्राइस इज 7,27,153 करोड़। हाँ, ये करोड़ में है, ठीक है। अब जैसे प्राइस बढ़ते जाएगा शेयर का, इसका ये भी प्राइस बढ़ते जाएगा। Are you getting it? ठीक है। So this was the market capital. So this is the market capital. We have to divide by this particular number. मतलब अभी जो ट्रेडिंग प्राइस जो भी चल रहा है, जो भी रहेगा LTP, ठीक है, we have to divide by that number and then we will get the number of shares. ठीक है, and that number of shares you have to put it over here and profit and then you will get the EPS. Getting it? ठीक है। So earning per share means what? एक शेयर के पीछे मैं कितना कमा रहा हूँ। Are you getting it? एक शेयर के पीछे मैं कितना कमाऊंगा, that is what is called the earning per share. ठीक है। So now this is what the EPS. So here it is saying the 47, मतलब अभी आप अगर like suppose if you just buy this particular share of 1700 वगैरह, मतलब 1700 का अगर शेयर लिया तो मैं 47 वगैरह कमा सकता हूँ पैसा। That is what that EPS is. Getting it? ठीक है। Is that EPS clear? Is earning per share, earning per share, ठीक है। And it's obvious जितना EPS ज्यादा उतना वो शेयर अच्छा है, मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट करने का एबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। सो अर्निंग पर शेयर इज मतलब इंपॉर्टेंट पैरामीटर व्हाइल डूइंग दैट फंडामेंटल एनालिसिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इट्स वन ऑफ द पैरामीटर, इट्स नॉट कि होल एंड सोल डिपेंड्स ऑन EPS ओनली, नो। You have to just analyze not many parameters, don't worry, that we will be covering, ठीक है। but EPS एक चीज है, that is अर्निंग पर शेयर, तो ये कंपनी का 47 है, ठीक है। नाउ लेट्स सपोज इफ आई जस्ट कंपेयर, चलो बाद में कंपेयर करते हैं, वी विल जस्ट डिफरेंट, विल कंपेयर विद द डिफरेंट आईटी इंडस्ट्रीज लेटर ऑन, ठीक है। सो दिस वाज द सर अर्निंग पर शेयर। हां बोल। सर ये अर्निंग पर शेयर मतलब आप कमाओगे, या अगर हम लोग ने 1700 का शेयर अभी लिया तो हम लोग ने एक 1700 का शेयर लिया तो कंपनी को 47 रुपीज मिलेगा, ऐसा है ना नहीं कि नहीं हम नहीं, ये लोग? तुझे होता है, तुझे तू कितना कमाएगा, ठीक है। मतलब दैट एक्चुअली कैसे, मतलब जब तू शेयर लेता है तू भी एक कंपनी का शेयर होल्डर है, पता है क्या, मतलब तेरी कंपनी होगी वो भी। हाँ, तो Are you मैं getting it? कमाऊंगा मतलब मतलब एज वेल तो 47। कंपनी को भी होगा, मतलब कंपनी के पास भी अगर उसके शेयर्स रहेंगे, बिकॉज कंपनी पूरा की पूरी मतलब कंपनी को भी सेल नहीं करती, मतलब मार्केट में नहीं उतरते, पता है ना, मतलब स्टार्टिंग में मतलब 80% के ऊपर नहीं जाते, तो कंपनी को भी फायदा होगा, तेरे को भी फायदा होगा। गेटिंग इट? तो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको वो EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर, तो वो एक शेयर के पीछे इतना कमाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन जो भी शेयर होल्डर है वो कमाएगा। गेटिंग इट? इट्स नॉट लाइक कि कंपनी और तू, इसके बाद भी शेयर है वो कमाएगा। गेटिंग इट? ओके सर। ओके, देन नाउ वी विल सी दिस इंपॉर्टेंट रेशियो P। अब ये इंपॉर्टेंट है, समझो, ठीक है। अभी P क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर दैट वी रिक्वायर दिस EPS, सो दैट्स व्हाई आई टेक दैट EPS। अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकालते हैं, जस्ट अ मिनट, आई विल टेक अ न्यू पेज, या, ठीक है। So now is the P ratio which you have to look, once again important parameter while doing the fundamental analysis. Yeah, it's a P ratio. Okay. Now what is the formula for the P? It is just like current share price. I will just write like this, current share price CSP. Okay. Divided by the EPS. So what is जो EPS निकाला है ना, वो इधर यूज करना पड़ता है, ठीक है। current share price divided by the EPS, earning per share. Are you getting it? ठीक है। This is a price to earning ratio. Price to earning ratio. ठीक है। अब इसका मीनिंग वगैरह आई विल जस्ट पुट एवरीथिंग इन अ सिंपल वर्ड, डोंट वरी, बट पहला टेक्निकली क्या है वो समझो, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय द EPS, फाइन। सो इफ आई जस्ट कम टू हियर, सो दैट्स अ P, लेट्स सपोज करंट शेयर प्राइस इज 1705, जस्ट अ मिनट गाइस, let me do that calculation only, and if I just divide by the 48, let's suppose, yeah, so it's a 35, ठीक है। तो if you want to just verify this P, अब ये P कैसे है, it's just like current share price, मतलब LTP, मतलब ये क्या, जैसे ये ऊपर वाला लेके चलेगा तो भी चलेगा फिर आता है, ठीक है। so 1705, so if you just do 1705 for this Infosys divided this earning per share, divided by this earning per share, so EPS मेरा कितना निकला 47, ठीक है। आई होप EPS कैसे निकाला हो मतलब आपको पता है, तो उसको क्या करना है, मार्केट कैपिटल डिवाइड बाय दैट प्राइस ऑफ शेयर, so that will give the number of shares and divided by then profit divided by number of shares, then you will get that EPS, ठीक है। अब ये EPS we have to use in P, price to earning ratio, ठीक है। how do we use? Simple, so it's just current share price, let's suppose if I just talk regarding the Infosys is 1705 and the EPS is 47.69, let's suppose for the calculation I will just take it as 48, okay. So if you just divide this, if you want, you may just do it on calculator on your mobile, so it just comes around 35, getting it, okay. So if I just check it, yeah, the P is a 35, ठीक है। now this is what the number I just got, तो P का ये नंबर मिला। अब इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज व्हाट नंबर आई गॉट, अब इसका मीनिंग क्या होता है,
P. Can anyone just मतलब can anyone just guess? It's a price to earning ratio. It's a price to earning ratio. Price to earning ratio. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सर 35 रुपीज प्राइस है तो 1 रुपया मेरे को मिलेगा उसमें अर्निंग है सर। चलो ठीक है, चलो दिमाग लगाओ, बिकॉज आई वांट टू पुट एवरीथिंग इन अ सिंपल वर्ड, बिकॉज ये नंबर जस्ट देख के आपको समझ में आना चाहिए, पहले ये रेशियो बोलता क्या है वो समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये जस्ट लुकिंग एट द फॉर्मूला एंड ऑल इतना कुछ नहीं समझेगा। आई वांट यू टू जस्ट मतलब ऐसा फील होना चाहिए, यार ईपीएस मतलब पी रेशियो बोले तो मतलब मुझे क्या समझ में आना चाहिए, बस आई वांट टू पुट दैट एवरीथिंग इन अ सिंपल वर्ड, बिकॉज ये सर फॉर्मूला वगैरह तो दुनिया भर में मिलेंगे। बोलो। कंपनी ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है? और ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे, वो उसके लिए मतलब यू हैव टू कंपेयर, पहले इधर जस्ट एक नंबर से नहीं बोल सकते आप, ठीक है। या लेट मी जस्ट टेल यू, या प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या, यू जस्ट सी लाइक दिस वन, कि अगर तुझे 1 रुपया कमाना है, इफ आई जस्ट टेल यू इन अ सिंपल वर्ड, इससे सिंपल नहीं मिलेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू जस्ट अर्न 1 रुपीज फ्रॉम द शेयर, देन तुझे 35 टाइम्स पे करना पड़ेगा, मतलब 35 मतलब ये जस्ट लाइक 35 टाइम्स पे करना, मतलब 35 रुपीज जो पे करना पड़ेगा, तब जाके तुझे 1 रुपीज मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? जैसे सिंपल वर्ड, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग मतलब तुझे अगर कुछ कमाना है तो कितना पे करना पड़ेगा, ऐसा सिंपल, जस्ट कीप इट इन सिंपल वर्ड, ठीक है। सो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मींस व्हाट, अगर मतलब इफ आई जस्ट गो टू दिस पर्टिकुलर नंबर, सो इट्स जस्ट लाइक अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे 35 रुपीज डालना है। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक दैट, अगर मुझे ये कंपनी से अगर 1 रुपया कमाना है तो मुझे 35 टाइम्स डालना पड़ेगा, तो अगर मैं 35 रुपीज डालूंगा तो मुझे 36 रुपीज मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब 1 रुपया मिलेगा उसके ऊपर। Are you getting it? ठीक है। So just once again, price to earning मतलब अगर मुझे अर्न करना है कुछ इतना अमाउंट तो मुझे कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज अ पी रेशियो। समझो, सिंपल, अंडरस्टूड, ठीक है। अभी इसका यूज करते ना, अब ये पी रेशियो वेयर टू यूज एंड हाउ टू यूज इट, जस्ट लाइक दिस वन। नाउ इट इज जस्ट नाउ नॉर्मली व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल जस्ट यूज दिस वन टू चेक वेदर मतलब शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत कम है, मतलब वो चीप है कि एक्सपेंसिव है दिस पर्टिकुलर शेयर, मतलब अभी ये टाइप पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ऐसे गेटिंग इट, ठीक है। सो पी रेशियो नाउ दिस इज व्हाट द प्राइस टू अर्निंग, मतलब अगर मुझे 1 रुपया कमाना है तो मुझे 35 रुपीज डालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द पी रेशियो का मीनिंग, ठीक है। अब नाउ हाउ वी विल यूज फॉर आवर फंडामेंटल एनालिसिस, वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ दिस रेशियो विल टॉक्स अबाउट कि वेदर द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द शेयर इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, ठीक है। मतलब ज्यादा एक्सपेंस ओवर वैल्यूड मतलब एक्सपेंसिव है कि मतलब उसकी उतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए तभी मैं उतना दे रहा हूँ, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओवर वैल्यूड, ठीक है। एंड अंडर वैल्यू मतलब क्या, ये प्रोडक्ट तो मतलब अच्छा खासा है बट बहुत सस्ते में मिल रहा है, दैट इज व्हाट इज अंडर वैल्यू। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हाउ टू जस्ट जज वेदर दिस पर्टिकुलर शेयर इज सस्ता और महंगा, ठीक है। सो फॉर दैट दिस पर्टिकुलर पी रेशियो वी हैव टू जस्ट कंपेयर विद अनदर पी रेशियो, अनदर इट मे बी अनदर कंपनी, आईटी कंपनी, और इट मे बी द पूरा सेक्टर का पी। Are you getting it? Try to understand, ठीक है। जैसे अकेले एक पी से कुछ नहीं होता, दिस इज द पी व्हिच टू कंपेयर विद समथिंग, देन यू कैन जस्ट कैलकुलेट समथिंग कि अरे हाँ ऐसा कुछ तो है। Are you getting it? Try to understand, जस्ट एक शेयर का पी देख के कुछ नहीं होता, दैट पी हैव टू कंपेयर। अब कंपेयर मतलब कोई तो दो चाहिए, अब किससे सब कंपेयर करेंगे, एक तो यू कैन जस्ट कंपेयर विद अनदर आईटी कंपनी, अदरवाइज यू कैन जस्ट कंपेयर विद द इंडस्ट्री पी, मतलब आईटी इंडस्ट्री के साथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट कीप द थिंग्स इजी, ठीक है। सो अभी ये कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इफ आई से एक कंपनी का पी 35 है और दूसरी कंपनी का पी 54 है, सो कौन सा अच्छा है, मतलब कंपनी 1 हैज गॉट पी ऑफ 35, कंपनी 2 हैज गॉट पी ऑफ 54। सो एक्चुअली इफ आई जस्ट कंसीडर दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन व्हिच आई गिवन यू टिल नाउ, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट व्हिच वन इज बेटर, कंपनी 1 बेटर है कि कंपनी 2 बेटर है? कम कंपनी वन सर कंपनी 2 कंपनी व्हिच जो कंपनी वन इज बेटर? जो वन वन बेटर वाली है, ठीक है, ठीक है। हाँ मतलब अभी आप समझ रहे हो कुछ, ठीक है। मतलब अगर इधर मुझे 1 रुपया कमाना है तो 35 रुपीज देने पड़ेंगे, इधर मुझे 1 रुपया कमाना है तो 54 रुपीज देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, ठीक सर है। बट हाँ बोल। सेकंड वाले का फिर अर्निंग पर शेयर भी तो ज्यादा रहेगा ना? हेलो, हाँ ये भी ज्यादा रहेगा। तो सेकंड वाली बेटर हुई ना, फिर उसका अर्निंग पर नहीं नहीं शेयर ज्यादा नहीं, है तो। अर्निंग पर शेयर इसका कम होगा तब जाके ये रेशियो बढ़ेगा ना। आर यू गेटिंग इट? अच्छा हाँ सॉरी, समझा क्या? मैं प्लीज डोंट हाँ डू द मिस्टेक, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मतलब ये क्या चीज है, रेशियोस वगैरह। अर्निंग पर शेयर उसका कम होगा तब जाके ये बढ़ेगा, वो अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा फिर पी कम होगा ना, जितना पी कम उतना एक्चुअल में अच्छा होता है, बट इट्स नॉट द केस एवरी टाइम। समझो, इट्स नॉट ट्रू एवरी टाइम कि पी कम है तो ले लो करके। समझो, आई विल जस्ट टेल यू, आई विल जस्ट कंपेयर द थिंग्स, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। बिकॉज जो चीज अच्छी है ना वो महंगी ही मिलेगी, ये बाजार का रूल है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, मतलब हाँ अच्छी चीजें सस्ती में मिल रही है, हाँ इफ इट इज स्टार्टअप कंपनी तब जाके मतलब एट दैट टाइम दैट पी विल बी लेस, एंड वो मतलब इट मे हैव दैट पोटेंशियल की अच्छी कंपनी है, बट कीप इन माइंड अच्छी चीज महंगी मिलेगी। आर यू गेटिंग इट? अच्छी चीज कभी महंगी मिलेगी, ठीक है। आई विल जस्ट प्रूव एवरीथिंग, डोंट वरी, ठीक है। सो पी रेशियो वंस अगेन हाउ इट विल हेल्प मी, जस्ट लाइक वी जस्ट कंपेयर द पी विद अनदर वन,
ठीक है. If I just compare P, मतलब now it's not कि try to understand. अभी मतलब if I just say कि Infosys का share 1705 है and if I just talk regarding TCS, so it will be around 4000. तो इधर ये शेयर महंगा, ये शेयर सस्ता, ऐसा नहीं होता है. समझो, it's not depends on this particular share का price. That is try to understand what I'm saying. ठीक है. It's not कि मतलब ये 4000 है तो महंगा हो गया. It's not कि मतलब ये 1700 है तो महंगा हो गया. समझो समझो समझो, शेयर मार्केट समझने की कोशिश कर. ठीक है. So now let's suppose I'm just comparing this Infosys, Infi and TCS. Try to understand. ठीक है. अभी Infosys का प्राइस 1705 है and TCS का प्राइस इतना है. ठीक है. But if I check P, try to understand. Now this is a thing which will tell you कि कौन सा शेयर महंगा है कि सस्ता है. समझो, do not go on शेयर का प्राइस. ये नहीं बोलता कि शेयर महंगा है कि कौन सस्ता है. ठीक है. Now let's suppose Infosys का P अगर let's suppose 35 है and TCS का P let's suppose just for example 25 है. ठीक है. These are the two things which I given to you. शेयर का प्राइस दिया, करंट LTP, लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस. ठीक है. एंड दिस वाज द P रेशियो which I given to you for the particular share. Now what do you say? कौन सा शेयर महंगा है, कौन सा शेयर सस्ता है? What do you will say? TCS सस्ता है. TCS सस्ता हुआ. TCS सस्ता है. समझो, इट्स नॉट कि ये प्राइस डिसाइड करता है कि सस्ता है कि महंगा है. EPS डिसाइड, सॉरी P रेशियो डिसाइड करता है. ठीक है. बिकॉज़ ये मतलब 4000 बढ़ा रहेगा बिकॉज़ उसने कभी बोनस नहीं दिया रहेगा, स्प्लिट नहीं किया रहेगा, दैट्स व्हाई प्राइस बढ़ता गया. ठीक है. सो इट्स नॉट, इट डजंट मीन कि मतलब इसका शेयर का प्राइस कम है मतलब वो सस्ता हो गया ना. इट इज नॉट लाइक दैट. समझो, शेयर मार्केट समझ. नाउ देन वी हैव टू चेक द P रेशियो आल्सो. ठीक है. P किसका ज्यादा किसका बड़ा है, देन यू विल से कि मतलब कौन महंगा और कौन सस्ता है. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? फंडा क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. ओके. ठीक है. सो नाउ वी जस्ट कंपेयर एक्चुअली, लेट्स सी. नाउ इफ यू जस्ट चेक दिस वन, अभी नॉर्मली कैसे रहता है मतलब ये मनी कंट्रोल पे ये EPS अभी समझा, P भी समझा. ठीक है. सो नॉर्मली यू विल हैव द सेक्टर P. सेक्टर मींस व्हाट? वो आईटी सेक्टर का P कितना है. सो आईटी सेक्टर का P फिलहाल तो 40 चल रहा है, मतलब उसके हिसाब से ना इन्फोसिस नाउ इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग वो फिलहाल तो सस्ते दाम पे मिल रहा है मुझे. Are you getting? Because sector P is 40 rupees. मतलब if I just compare all the if I just take all the IT companies, मतलब जो भी है TCS, Wipro, then Mindtree, then Infosys वगैरह जो भी IT companies listed है, if I take average of that, if I take average of that P, then I will get a sector P. समझो अभी sector P भी कैसा है. ठीक है. So normally how do we get कि वो particular company महंगी, मतलब वो particular share महंगा हो गया कि सस्ता हो गया. ठीक है. That मतलब I will just compare with this P. ठीक है. तो सेक्टर का P 40 है एंड इसका P 30 का, मतलब ये फिलहाल तो कम प्राइस पे चल रहा है. मतलब नाउ स्टिल मतलब इट कैन ग्रो, मतलब थोड़ा सा ग्रो हो सकता है, मतलब अभी तक ये महंगा नहीं हुआ है. समझो कैसे समझ रहे हैं. ठीक है. सो यू कैन जस्ट कंपेयर द सेक्टर का P आल्सो बिकॉज़ सेक्टर P विल बी अवेलेबल विद ईच एंड एवरी शेयर. ठीक है. सो सेक्टर के मुकाबले फिलहाल तो ये सस्ता चल रहा है. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. नाउ इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग TCS, लेट्स सी द TCS नाउ. ठीक है. आई विल गो टू द TCS. Let's see for the TCS. So once again, मतलब what I meant to say that share का price doesn't decide कि share महंगा है कि सस्ता है. ठीक है. It depends on P as well. Fine. So अभी ये this is what TCS का details. So TCS का मतलब आज का range, मतलब आज 3816 तक गया था and 3849 तक गया था. फिलहाल इधर ट्रेड कर रहा है ये प्राइस पे. ठीक है. And 52 week low देखो, 52 week low it was like 2200 and 52 week high उसका 3800 मतलब almost इसने भी एक ईयर में डबल किया पैसा है, 1 ईयर में डबल किया पैसा. समझो. ठीक है. एंड वॉल्यूम मतलब कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं. एंड बीड एंड आस्क मतलब बीड मतलब नाउ डू यू अंडरस्टैंड बीड एंड आस्क, बीड वगैरह करते हैं ये मतलब दिस इज व्हाट आई वांट टू सेल इट एज 3830 एंड दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि मतलब हां 3833 पे दे वगैरह जाने तो ये बीड एंड आस्क बाद में देखेंगे. ठीक है. इसका जरूरत नहीं ज्यादा. ठीक है. बट दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट डे रेंज क्या है, 52 वीक हाई लो कितना है. सो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज़ एंड लुकिंग एट द 52 वीक रेंज वी विल अंडरस्टैंड एंड करंट प्राइस कि मतलब वो शेयर ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है. तो उसका 52 वीक लो 2200 था. इफ दैट लेटेस्ट ट्रेडिंग दिस इज कॉल्ड द LTP, दिस पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड एज LTP. ठीक है. एंड हियर डाउन है, मतलब आज थोड़ा डाउन गया 0.26% से वो थोड़ा डाउन गया. ठीक है. सो इधर डेट एंड उसका टाइमिंग वगैरह सब आएगा. सो 10:02 पे अभी फिलहाल तो इसका प्राइस ये है. फाइन. सो नाउ वी हैव टू जस्ट कंपेयर विद दिस 52 वीक लो का रेंज, मतलब ये रेंज. नाउ इफ इट इज वन, नाउ दिस इज पर्टिकुलर प्राइस इज ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई. ठीक है. 52 वीक हाई से 3859 था, तो उसके आसपास है, मतलब अभी ये फिलहाल तो 52 वीक हाई के पास चल रहा है. ठीक है. जैसे अभी इसका प्राइस अराउंड 3000 वगैरह रहता था, अदरवाइज अराउंड लेट्स सपोज 2800 रहता. सो अभी से क्या, हाँ 52 वीक लो के आसपास चल रहा है फिलहाल तो. Getting it? So this is what we will just analyze. ठीक है. And normally लोग क्या करते हैं, normally लोग क्या करते हैं, जस्ट एक टेंडेंसी है
ठीक है. इफ योर पर्टिकुलर शेयर इज ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई तो उसको बाय करना अवॉइड करते हैं नॉर्मली. ऐसा मतलब लोगों का टेंडेंसी, मतलब जिनको ज्यादा एनालिसिस वगैरह नहीं आता. ठीक है. नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इफ योर शेयर इज ट्रेडिंग नियर 52 वीक हाई तो उसको लेना पसंद नहीं करते, थोड़ा छोड़ देते हैं. ठीक है. हाँ, जब ये मतलब ये जो भी डॉट, ये जो बॉल दिख रहा है, अगर वो थोड़ा इधर 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 आ जाएगा, ठीक है, हाँ, तब दे विल टेक एंट्री कि अभी थोड़ा सस्ता हो गया, करेक्ट हो गया. इसको मतलब प्राइस कम हुआ, उसको मार्केट में बोलते हैं करेक्शन. अगर प्राइस कम हुआ, ठीक है, मार्केट जब मतलब हाँ बहुत ज्यादा ऊपर गया फिर से नीचे आता है, उसको बोलते हैं करेक्ट, मार्केट करेक्ट हुआ करके बोलते हैं. ठीक है. तो मतलब प्राइस थोड़ा कम होगा, तो बहुत ज्यादा महंगा ले लिया था, थोड़ा इसको लेवल पे लाया, बाबा इतना महंगा तेरा प्राइस नहीं फिलहाल, तो थोड़ा कम आ जा. दैट इज कॉल्ड द करेक्शन. ठीक है. सो नॉर्मली टेंडेंसी क्या रहती है लोगों की, इफ योर ट्रेडिंग प्राइस इफ इट इज रेंजिंग, दिस बॉल मींस फॉर ट्रेडिंग प्राइस. ठीक है. इफ इट इज नियर दिस 52 वीक हाई तो नॉर्मली लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है. हाँ, अगर वो थोड़ा बॉल इधर उधर वेस्ट साइड में खिसका तो फिर दे विल ट्राई टू बाय इट. Getting it? Okay, this was a strategy. Yeah. Now just talk regarding that EPS and all for this TCS. Yeah. So you can see EPS is 93 earning per share. मतलब अच्छा खासा स्टॉक है TCS, मतलब it is actually better than Infosys actual में. ठीक है. एंड TTM देख, TTM मतलब ट्रेनिंग ट्रेडेड सॉरी ट्रेनिंग 12 मंथ P इज 41. ठीक है. मतलब इसका P फिलहाल तो ज्यादा है. यस, इफ इट इज डूइंग गुड तो उसका P भी ज्यादा रहेगा. Are you getting it? ठीक है. Earning per share is 93. ठीक है. And P is also 41. मतलब now it is greater than sector P. Try to understand. Sector P Infosys के लिए भी 41.74 था और इसके लिए भी सेम ही रहेगा because it's a sector P. ठीक है. But now the P of TCS is the 41. मतलब ये थोड़ा सा महंगा है, ठीक है. If company is doing good ना, keep in mind, महंगी मतलब अच्छी चीजें थोड़ा महंगी ही मिलेंगी guys. Are you getting it? अच्छी चीज थोड़ा महंगी ही मिलेंगी. Getting it? ठीक है. So now you can see कि ये शेयर थोड़ा सा महंगा है, it's not ज्यादा महंगा because sometimes you may have like sector P 40 and इसका P it goes around 50-60 वगैरह, उस टाइम भी बोल सकते हैं हाँ अभी ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया. ठीक है. बट फिलहाल या इस महंगा, बट इट्स नॉट लाइक बहुत ज्यादा महंगा है करके, मतलब बहुत ज्यादा ही प्राइस दे रहे हैं करके, नो. ठीक है. हाँ, इफ यू जस्ट सिंपल लाइक मतलब जस्ट इफ आई जस्ट कंपेयर आईफोन विद एनी अदर फोन, ठीक है, तो आईफोन का प्राइस ज्यादा है बिकॉज पीपल ट्रस्ट ऑन दैट क्वालिटी, मतलब यस एप्पल विल गिव दैट गुड क्वालिटी, वो मोबाइल भी बहुत सही रहेगा तो उसका प्राइस ज्यादा रहेगा. पीपल आर सो रेडी टू पे मोर. गेटिंग इट? ठीक है. तो दैट्स व्हाई उसका प्राइस भी ज्यादा रहेगा, तो दैट्स व्हाई उसका पी भी ज्यादा ही रहेगा. Getting it? ठीक है. So this is what Infosys and TCS का comparison. ठीक है. Now at this point, if I just ask you people, which share you will buy? Infosys की TCS, तो क्या बोलोगे? Infosys की TCS. सर अगर पैसा रहा तो TCS, नहीं तो फिर Infosys. Yes, that बजट is में also रहा fine. That is also fine. ठीक है. Yeah. Any other conclusion from anyone? Just by मतलब अभी तक जितना मैंने पढ़ा उसके ऊपर. Sir, I'll go for Infosys, sir. क्यों? Reason क्या रहेगा? So because उसका PE भी मतलब थोड़ा सा कम है and you know like वो भी अभी profit भी दिखा रहा है, so I'll go for that. Yeah, very good. ठीक है. Anyone else want to just comment अपना राय, because I want you to conclude something, वो important है. just नंबर देके कुछ नहीं बोला, conclusion आना चाहिए कुछ तो बोलो. anyone, especially please girls. Infosys and TCS, if I say right now तो कौन सा खरीदे करोगे आप? come on girls, if any. अरे गर्ल्स बात नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता. खुशी, फिलहाल तो मैं तुझे ही मतलब देखता हूँ, गर्ल्स बाकी मुझे दिखाई नहीं दे. या खुशी, व्हाट यू विल कमेंट? Infosys के TCS फिलहाल तो on this level of discussion. Kushi, are you there? Because I will not waste my more time. Okay, ठीक है. let it. So what I will do is that कि मतलब अभी देख मैं कैसे सोचेगा, मतलब ठीक ठाक. Now here also I will check कि हाँ इसने भी पैसा डबल ही किए and उसने भी पैसा डबल ही किए, अगर एक ईयर में देखने गया तो. ठीक है. मतलब दोनों सिमिलर चल रहे वैसे देखने गए तो फाइन. एंड इफ आई जस्ट चेक द पी तो उसका पी थोड़ा कम है, मतलब वो थोड़ा एक्चुअल में थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है. सो आई विल गो फॉर Infosys बिकॉज दैट आई नो मींस दैट कंपनी इज आल्सो गुड. आर यू गेटिंग इट? आई नो दैट कंपनी इज आल्सो गुड. ठीक है. सो मतलब इट जस्ट लाइक कि मतलब हाँ उसका थोड़ा भी प्राइस बढ़ने का चांसेस ज्यादा है लाइकवाइज. सो आई विल गो फॉर Infosys also. ठीक है. बट फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ आई जस्ट टॉक, इट जस्ट लाइक इफ यू जस्ट डू ऑन दैट 5 year means that is one of our funda. Yeah, this is also the good stock. But this is what we have to look for. मतलब if I just think regarding the long term ना, and this is fundamental analysis for the long term only. Guys देखो कितनी बार डिविडेंड दिया है और एक बार you can see the bonus वही है. ठीक है. So if I just talk regarding the long term ना, TCS is also good.
या मतलब इफ यू सी एनी शेयर गोइंग लाइक दिस वन एज आई टोल्ड, ये विंडो में अगर डायगोनली जा रहा है, बिंदास पैसा डाल उसमें, बिंदास पैसा डाल, ठीक है. दिस इज वन थिंग, मतलब दिस इज द वन पैरामीटर व्हिच आई आस्क्ड यू, मतलब ऐसा अगर जा रहा है तो जा सकते हैं, ठीक है. इफ आई चेक फॉर इन्फोसिस वंस अगेन, Infosys का if I just check this chart, it actually shows for 5 years only, but Google पे आपको उससे भी ज्यादा मिल सकता है, but ठीक है 5 years फाइन है फिलहाल दे रहा अपने लिए. Come on, yeah, if I just check for Infosys for 5 years, yeah, it is also doing good, ठीक है. But I can say मतलब yeah, actually after that 2020 उसका थोड़ा ग्रोथ बहुत रैपिड है, मतलब थोड़ा ज्यादा रैपिड में जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है. सो बोथ शेयर्स आर गुड एक्चुअली, बोथ शेयर्स आर गुड फॉर इन्वेस्टिंग, ठीक है. इफ आई जस्ट टॉक रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म, इफ आई जस्ट सी दिस पर्टिकुलर चार्ट, देन ईदर आई विल गो विद इन्फोसिस और टीसीएस, दोनों में से कौन सा भी चूज करूंगा, बिजनेस चलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है. बट फिलहाल इफ आई जस्ट टॉक मतलब कौन सा जाओ, तो फिर आई विल जस्ट चेक द पीएन ऑन, तो मैं बोलेगा चल ठीक है इन्फोसिस में डाल दे, गेटिंग इट, आई विल जस्ट पुट इट इन इन्फोसिस, गेटिंग इट, ठीक है. या इफ यू वांट टू गो फॉर टीसीएस, दैट इज आल्सो द गुड शेयर बिकॉज़ यस चार्ट अच्छा खासा है उसका भी, getting it, okay. So either you may go for Infosys or Tata, but normally what I do is that I do not keep 2 or 3 companies of the same sector, normally मैं avoid करता हूँ, वो सेक्टर में जो भी अच्छा है वही रख, ठीक है. ऐसा नहीं आईटी है तो फिर मैं Infosys भी रखेगा, TCS भी रखेगा, Wipro भी रखेगा, Mindtree भी रखेगा, ऐसा नहीं करता normally, ठीक है. because you have to go for the another sector also, keep in mind, do not take shares of one sector only, because वो अगर सेक्टर गया तो तेरा पोर्टफोलियो भी डाउन जाएगा, ठीक है.